New Hope TV, your encounter with God. I want you to go to the book of Judges. मैं चाहता हूं कि न्याय की पुस्तक में निकालें Judges chapter 16. न्यायों की पुस्तक 16वां अध्याय And let's read from verse 4 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके चौथे वचन से। Now this thing speaks about a great man of God called Samson. और यहाँ पर चर्चा की जा रही है परमेश्वर के महाजन शिमशोन के बारे में। But I want to bring something different from this. लेकिन इसमें से मैं कुछ खास आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। Watch this. गौर करें। Afterward, it happened that he loved a woman in the valley of Sorek. इसके बाद वो सोरेक नामक घाटी में रहने वाली एक औरत से प्यार करने लगा Whose name was Delilah. जिसका नाम था दलीला। Verse 5 says, 5वां वचन कहता है, and the lords of the Philistines, the leaders of the Philistines, came up to this Delilah and said to her, तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री दलीला के पास जाके कहा, entice him, तू उसको फुसला, trap him, उसको फंसा ले, deceive him, उसे भरमा दे and find out something for us. और हमारे लिए कुछ पता लगाना Find out what is the secret, where his great strength lies. कि उसके इतनी महाशक्ति का भेद यानी रहस्य क्या है। Please understand this, that contrary to what we see in the movies, Samson was not a muscle man, he was not a bodybuilder. और जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप समझ लीजिए कि शिमशोन जो था वो अच्छे कद काठी या अच्छे मांसपेशियों वाला व्यक्ति नहीं था। He didn't have a 6-pack or an 8-pack, you know. और देखिए उसके पास 6 पैक या 8 पैक जो होता है वो नहीं था। He was a normal man. वो बिल्कुल एक मामूली सा व्यक्ति जैसा था। See, if you see a person who's 6 feet 4 inches or 7 inches and he's got muscles that are larger than your thighs and all that stuff, you don't have to ask him where does your strength lie. He says, come, I'll twist your neck, I'll show you where my strength is. देखिए अगर आप 6 फीट 4 इंच के व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जिसकी हाथों की मांसपेशियां जो है आपकी जांघ के जितना है, तो आप उससे जाकर पूछेंगे नहीं कि आपकी ताकत का रहस्य क्या है, क्योंकि वो तो दिखा देंगे वैसे ही। It's obvious that his muscles are the secret of his power. और हम देख सकते हैं कि उसकी मांसपेशियां ही उसकी रहस्य है उसके सामर्थ्य का। But here is a simple, ordinary looking man. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एक सीधे साधे से दिखने वाले व्यक्ति को, And they're wondering from where is his strength coming? और वे आश्चर्य पड़ के सोचते थे कि उसकी ताकत आती कहाँ से है। And they say, find out पता लगा where his great strength lies and by what means. How can we overpower him? How can we overcome him? और आगे वो ऐसे कहते हैं कि तू उसको फुसलाकर पूछ ले कि उसके महाबल का ये भेद यानी ये रहस्य क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर प्रबल हो सकते That हैं। we may bind him. Watch this. This is the enemy speaking now. To bind him, to afflict him. And every one of us will give you, Delilah, 1100 pieces of silver. कि उसे बांध कर दबा रखें, तब हम में से हर कोई तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। Interesting that Joseph was sold for money. Jesus was sold for money and Samson also being sold for money. और बड़ी दिलचस्प बात है कि यूसुफ को पैसों के लिए बेचा गया था, यीशु को भी पैसों के लिए बेचा गया था, और अब यहाँ शिमशोन को भी देखते हैं जिसे पैसों के लिए बेचा जा रहा था। Well, that's not my sermon, but I want to show you something very powerful that will help you. लेकिन ये मेरा संदेश नहीं है, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ही सामर्थ्यशाली, जो आपकी मदद करेगी। You see this man Samson. आप देखते हैं इस व्यक्ति शिमशोन को। The enemy was constantly studying him. The enemy was constantly monitoring Samson. और शिमशोन के बारे में उसके शत्रु जो थे लगातार निगरानी कर रहे थे, बराबर उसकी जिंदगी पर वे अध्ययन कर रहे थे। You know, they were seeing where he's going. और वे देखते थे कि ये कहाँ जाता है। They were seeing where he is, to whom he's talking. और वे इस बात का मुआयना करते थे कि ये किससे जाके बात करता है। The first thing, please write it down. It will really help you. पहली चीज लिख लीजिए, या यकीन आपकी मदद करेगी। The enemy, that is the demonic powers, they are constantly monitoring people. और जो शत्रु होते, जो दुष्ट शैतानी शक्तियां होती हैं, वे लोगों की लगातार निगरानी करती हैं। In fact, the enemy has been constantly monitoring our generations. और दरअसल देखा जाए तो शत्रु जो होता है हमारी पीढ़ी का लगातार निगरानी करते आ रहे हैं। Medical science says और वैदिक विज्ञान कहता है that a particular, hello, how many of you know genome, gene sequencing? और कितने जानते हैं जीन का जो Genes. By studying the genes of a person, a medical science can tell you what this man is weak to, in what sicknesses can attack this person, what viruses can come to this person. और देखिए एक व्यक्ति के
जैसे कि वंशावली का अध्ययन करके वैद्यकीय विज्ञान इस बात का पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है किस बात में कमजोर होगा और कौन सी बीमारियां इन पर आसानी से आ सकती हैं। So also in the spiritual, if you look in the spiritual, you can find out from looking at your family that what kind of weakness your family had. और उसी तरीके से आत्मिक स्थिति में भी आप पाते हैं कि अगर आप इस पे नजर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके परिवार में, आपकी वंशावली में कौन सी कमजोरियां रही हैं। One lady wrote to me एक बहन ने लिखा a prayer request. एक प्रार्थनाग्रस्त, It says, my grandfather, he passed away with cancer. और उन्होंने ऐसा लिखा कि मेरे दादाजी का देहांत हो गया कैंसर में, And my uncle उसके बाद मेरे अंकल has cancer. उन्हें भी कैंसर हुआ, And this is in our family. और ये लगातार हमारे परिवार में चलता रहा है। You see this? How many understand what I'm saying? और आप देखते हैं कितना समझ रहे हैं इस बात को। Another person wrote to me. और दूसरे व्यक्ति ने लिखा In our family, हमारे परिवार में there are marriages that are broken. ऐसे शादियां जो टूट गई हैं। And Pastor Mike, और पासवान जी in our family also, हमारे परिवार में भी, the immediate family, there are marriages breaking. और जो सामने वाला परिवार उसमें भी शादियां टूट रही हैं। She says, can you pray for this pattern to break? और वो ऐसा कहती हैं कि क्या आप प्रार्थना करेंगे कि ये चलता आ रहा चक्र सिलसिला जो है टूट जाए। The first thing you must recognize is there are patterns, there are evil patterns. Touch your neighbor and say, evil patterns in a family. और पहली चीज जो आपको नजर रखने की जरूरत है वो ये है कि शैतानी चक्र यानी सिलसिला जो तोड़ने की जरूरत है परिवार में आता है। It could be a pattern of childlessness. और ये हो सकता है कि निसंतानपन का कोई चक्र होगा। Somewhere in your family, people didn't have children. और आपके परिवार में कहीं पर तो लोगों को बच्चे नहीं थे। It could be a pattern of marriage, people not getting married. हो सकता है ये ऐसा चक्र हो जहां पर लोगों की शादियां ही नहीं होती It थी। could be a pattern of stormy families where there was a lot of fights and confusion. और या फिर ऐसा हो सकता है कि परिवार में बहुत सारे लड़ाई झगड़े और गड़बड़ियां हुआ करती थी। It could be a pattern of immorality where people were just living immoral. They had a husband, they had a wife, but they were with somebody else and it continued in that family. How many understanding what I'm saying? हो सकता है कि ऐसा परिवार रहा होगा जहां पर लोग गंदे कामों में रहते थे, उनके शादीशुदा जिंदगी होते हुए भी वो दूसरों के साथ जिंदगी बिताते थे और इस प्रकार का गंदे काम वाला चलने वाला चक्र चलता रहा। The enemy constantly studies families. और शत्रु जो होता है लगातार ध्यान से परिवारों का मुआयना करता है। And because of this, और इसके वजह से he knows वो जानता है what those weaknesses are in a particular family. कि एक खास परिवार में कौन सी कमजोरियां रही हैं। That is called, some people say, bloodline curses or generational curses. और इसी को कुछ लोग नाम देते हैं जैसे कि पीढ़ी पीढ़ी का श्राप। And the sad part is the enemy also constantly monitors us. और दुख की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि शत्रु हमारा भी मुआयना करता रहता है लगातार। What do you do on Facebook? और क्या तुम देखते हो और जानते हो You फेसबुक may पे? not like, you may not comment. What are you doing on social media? What kind of posts are you looking at? You see, in the spirit realm, nothing is hidden. और सोशल मीडिया पर आप किस प्रकार के पोस्ट और चित्र देखते हैं, आप देख सकते हैं कि आत्मिक जगत में कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता। To the world, you may appear a goody-goody guy or a goody-goody girl. God bless you for it. But in reality, the enemy knows who you are, and of course, God knows who you are. और दुनिया के सामने तो अच्छे बनने की और अच्छे दिखने की आप कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, लेकिन शैतान जानता है कि आप दरअसल क्या हैं और परमेश्वर भी जानता है कि आप क्या हैं। By studying this, the enemy will offer to us, he knows exactly what to offer us. Say it after me. He knows exactly what to offer us. और हमारे जिंदगी पर वो मुआयना करने के जरिए वो इस बात को जान जाता है कि उसको हमारे पास क्या पेश करने की जरूरत है। You see, the enemy was monitoring Samson's life. आप देखते हैं कि शिमशोन की जिंदगी पर शत्रु निगरानी कर रहे थे। If you read Judges chapter 15 and the early ones, you see Samson had a weakness for women. अगर आप न्याय की पुस्तक 15वें अध्याय उसके पहले के अध्याय में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि शिमशोन में औरतों के लिए कमजोरी थी। Delilah was not the first one. और दलीला ये पहली औरत नहीं थी। In fact, she was the third or the fourth person in 2 chapters. Okay. और दरअसल देखिए 2 अध्याय में तीसरी या चौथी औरत ये थी। And every time he was involved with a woman, there was some big fight happening. और हर बार जब वो महिलाओं से जुड़ता था या इसमें शामिल होता था, कुछ बड़े लड़ाई झगड़े होते थे। He was a Nazarite. और वो एक नासरी व्यक्ति था। And the first
person he got interested in or fell in love with, his parents told him, don't do that. और पहली महिला से जिसके वो प्यार में पड़ा तब उसके माता पिता ने उससे कहा था कि ये मत करना. He says, why can't you get married to somebody of our own? And he says, mom and dad, what do you know of today's? You're old fashioned. Come on now. और देखिए उसके माता पिता ने उससे कहा था कि क्यों नहीं तुम हमारी बिरादरी में के किसी से शादी कर लेते हो. तो शिमशोन ने उनसे कहा था कि माता पिता तुम तो पुरानी शैली के लोग हो, तुम्हें नहीं पता ये सब. You don't know all this love stuff. You're Purana, all you know. Are you getting my point? आपको समझ में आ रहा है? And please go home and read it. Every time there was some issue, there was some problem. In fact, the first time a lion came against him. और अगर आप घर जाके पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हर बार कुछ ना कुछ मामले और लड़ाई झगड़ा होते रहते थे. और अगर आप पहली बार देखेंगे तो शेर जो था वो उसके खिलाफ में आया था. Now many times God will help you even when you're going on the wrong way. He will rescue you. और देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं परमेश्वर आपको बचा लेगा. And just because you got away with it, और क्योंकि बस आप उससे बच गए, it's not an approval from God that you can do it. इसका मतलब ये परमेश्वर की ओर से रजामंदी नहीं है आपके लिए कि आप इसे लगातार करें. Just because you escaped by the skin of your teeth, just because you made it, nothing happened, does not mean that God is approving of your lifestyle. और देखिए क्योंकि आपने उसे करना चाहा और आप उसमें कामयाब भी हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको रजामंदी दे रहा है और खुश है आपकी जीवन शैली